It is almost same. So second chapter, third chapter is yogic aspect. That is paper 1. Okay. पेपर सर यस योगिक थेरेपी और योगिक इसमें डिफरेंट है क्या सर? हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता अच्छा. हूँ. योगिक थेरेपी, योगिक एस्पेक्ट. थेरेपी एंड एस्पेक्ट्स मतलब व्हाट मीन्स what are all the asanas and all are the aspects of the therapy, and therapy means how you are going to treat. So there is one chapter in our important topics notes का जो book है ना, important topics related to different topics है ना, उसमें एक chapter है, first chapter, that is yogic therapy. Okay. Limitations वगैरह तो सब है, मतलब what is yogic therapy and the limitations of the therapy etc. Okay. So this chapter is related to yogic therapy, उसमें से questions है. And the third chapter है aspects में क्या आएंगे कि what are the diseases और कैसे होते हैं, क्या होते हैं, related to yogic aspect. मतलब जो पंचकोश से भी रिलेट किया है ना उसको, कि मनोमय कोश में कैसे होता है, क्या होता है, all that. So that will come into your second chapter. But along with that, there is a fourth chapter. That is all practices. Okay, they are all practices. All those practices, you don't means you have to go through all practices. Okay, so almost बहुत सारे भी practice रहेंगे ना, so इसमें से some of the practices are common, जो डाइजेस्टिव में मिलेंगे तुमको, रेस्पिरेटरी में मिलेंगे और योगिक में कहीं भी मिलेंगे, मतलब some of them are common. प्राणायाम and meditation is common for all, बराबर, they are. So why they are common practices? Because there are two things. एक तो local effect, central effect, है ना. The central effect of any practice asan is the same, that is affecting your mind and, but local effect, suppose if you are doing bhujangasan या धनुरासन in digestive system, okay, so when you are doing it in a prone position and you are exerting pressure, तो इसका इफेक्ट तुम्हारा डाइजेस्टिव जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर होता है. That is why it is given in that digestive system. But उसके साइड इफेक्ट्स भी है ना, सेम टाइम एसोसिएटेड इफेक्ट्स जो है वो क्या है, यू आर रेजिंग योर हेड, थायराइड के ऊपर इफेक्ट करेगा, योर बैक मसल्स आर स्ट्रेंथनिंग, है ना, तुम धनुरासन करते हो, योर शोल्डर्स, ये मसल्स, तो रेस्पिरेट तुम्हारा मस्कुलोस्केलेटल में भी ये इफेक्ट आएंगे ही आएंगे, है ना, बैक के ऊपर है, तो डेफिनेटली इट इज देयर. बट सपोज इफ यू आर आस्क्ड कि ये डाइजेस्टिव में धनुरासन के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और क्या बेनिफिट्स है. So digestive के benefits and contraindications are related to that. Contraindications है, obviously it is a prone position, so pregnant women can't do. If you have a recent surgery, abdominal surgery, you can't do, है ना. So that will remain in definitely in musculoskeletal में भी रहेगा, but musculoskeletal से related क्या रहेगा? If your shoulders are weak, if you are having some problems in the lower back, you cannot raise it. तो so ये समझना, that is what is expected from you in this. अच्छा किरण गुप्ता मैडम, how are you? फीवर है अभी भी? Are you well now? मैडम ठीक है ना? किरण सिंह को फीवर है. मैम मुझे फीवर नहीं, सर मुझे फीवर नहीं है. Okay, I thought you are having a fever. Okay. ना ना किरण सिंह को है. किरण सिंह का है. Okay, I thought आपको है. ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मैसेज देखा होगा. इट्स ओके, whoever is. तो ये है वहां पे कि क्या रहेगा उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम. तो ये समझने में आसान है, ऐसे कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है. सो डोंट टेक टेंशन. ओके, तो ये हो गया योगिक एस्पेक्ट पेपर 1 एंड मेडिकल एस्पेक्ट पेपर 2. सिंपल. Anybody has got any doubts? Please ask. Sir. In that case, there is fifth chapter
in each system, natural living and naturopathy for digestive disorders or for respiratory disorders. Same, no? It is, देखो naturopathy, natural living, ये तो पूरा हमारा कोर्स का फंडामेंटल है. So naturopathy, natural, if you observe it carefully, digestive system में उसमें क्रियाज है ना, उसमें क्रियाज आएंगे ना. It is related to क्रिया. तुमको स्टमक क्लीन करना है, तुमको क्रिया करना है, तो नेचुरोपैथी विल बी क्रिया फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम. फॉर रेस्पिरेटरी इट विल बी प्राणायाम में ज्यादा ये करना है. समझ गए ना. सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए नेचुरोपैथी में क्या होगा, तो तुमको ये करना है. योगिक एंड समझ में आया ना. हाँ, मैं तो पर्टिक्युलर चॅप्टर कुठल्या पेपर मध्ये येणार. आता कसं होतंय, एकच बुक बट इट इज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरंट पेपर्स, पर्टिक्युलर पोर्शन चॅप्टर वर. गडबड ना करू. मी सांगितलं मेडिकल एस्पेक्ट क्लिअरली फक्त एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिसऑर्डर्स है ना, त्याच्यावरची ट्रीटमेंट किंवा काय आहे रिलेटेड वगैरे ते सगळं तुमच्या योगिक एस्पेक्ट मध्ये येणारच आहे ना तुमच्या. सो मेडिकल एस्पेक्ट इज प्युअरली मेडिकल एस्पेक्ट, त्याच्याशी काही संबंध नाही. मग योगिक एस्पेक्ट म्हणजे आपला तो फंडामेंटल कोर्स आहे. दॅट इज अवर कोर्स, दॅट इज व्हॉट वी आर हिअर टू लर्न फॉर द होल इयर. सो ऑब्वियसली most important paper is the yogic aspect and yogic theory का है ना. that is your most important paper है ना. so वो है medical aspects. we don't expect you to become a doctor ना 10 महीने का कोर्स में. ऐसे कुछ नहीं है. तुम्हाला काय त्याच्यात तुम्हाला खूप काय हार्टचं सगळं जाणून घेऊन काय गरज नाही है ना. you don't need to study हार्ट कैसे है, क्या है, वो कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, कैसे वो पर्किंजे फायबर वर्क करते. ओके, यू शुड नो. पण थेरपिस्टला तिथे नकोय. थेरपिस्टला काय पाहिजे, सपोज इफ समबडी इज हॅव्हिंग हायपरटेन्शन और एनी हार्ट डिसीज, व्हॉट प्रिकॉशन्स ही शुड टेक, अँड सपोज नॉट टू हॅपन व्हॉट इज टू बी डन. मग ते तुम्ही नॅचरोपॅथी, नॅचरल लिव्हिंग, दॅट टाइम यू हॅव टू थिंक इट शुड नॉट, वन शुड नॉट go to that. As the age increases, what precautions you should take, how you should behave, that will come. How, what should be your habits. but ते काहीतरी फ्राईड फूड्स, मग कोलेस्ट्रॉल जमणार आणि मग कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होणार की हार्ट डिसीज येणार. एम आई राइट. सो ये सब अवॉइड करने के लिए तुम नेचुरोपैथी एंड नेचुरल लिविंग का कोर्स कर रहे हो. दैट इज टू अवॉइड दिस है ना. बट यू शुड नो कि if I am not having these good habits, if I am eating bad, what is cholesterol and how it is going to block and what it is going to block. Many people do not know where the coronary arteries are, right? So coronary arteries म्हणजे हा आहे, बायपास आहे, आहे म्हणजे काय, बायपास म्हणजे काय. आपल्याला माहिती आहे हायवेला जाताना नाशिक आलं की नाशिक बायपास सिन्नर वरून निघून जातो. सेम आहे ना तो बायपास. म्हणजे मेन आर्टरी ब्लॉक झाली की त्याला बायपास काढतो. वी शुड नो की व्हॉट इज बायपास. मला काय बायपास सर्जरी नाही करायची. वी आर नॉट आस्किंग दैट यू शुड नो दैट बायपास सर्जरी. बट मैं थोड़ा डिटेल में दिया है ना कि हाउ दैट, सपोज इफ अ पेशेंट कम्स एंड टेल्स यू कि मुझे एंजियोप्लास्टी का ये है. व्हाट इज एंजियोप्लास्टी एंड व्हाट इज एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी इज ओनली टेस्ट, treatment. So at least that difference. ये तो we are expecting कि as a therapist you should know इसके क्या हो रहा है पेशेंट को. सपोज उसको कुछ स्टेंट डाले हैं बोले तो स्टेंट कहाँ डाले हैं, that also you should know. No, what is stent? For that it is given. It doesn't mean कि एग्जाम को आपको पूछेंगे स्टेंट कैसे डालते हैं, बताओ. कोई पूछने वाला नहीं है. We don't expect. बट यू शुड हैव दैट नॉलेज है ना. कि कल अगर तुम देख रहे हो तो कोई पेशेंट आए, इफ इज सेइंग, यू शुड हैव दैट नॉलेज, दैट बेसिक नॉलेज. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. तो क्या करते हैं ना तुम लोग, बहुत कुछ सब देख के एकदम बहुत टेंशन लेते हैं. डाइट का बुक खोला, उसमें वो सब मिनरल्स सर ने दिए, सेलेनियम, जिंक, ये वो फलाना फलाना. फ्रॉम एग्जाम फॉर नॉलेज, ओके, दैट इज गुड. But exam point of view, it is not required. Exam point of view, it is not. तुमको क्या करना है कि सेलेनियम कितना mg माइक्रोग्राम सेलेनियम होना चाहिए, कितना माइक्रोग्राम जिंक होना चाहिए. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग. समझे ना. सो उसका टेंशन लेके ही आधे हो जाते हैं लोग. सो डोंट टेक दैट टेंशन. मेरा कहने का मतलब क्या है, यू हैव कम
टू परफॉर्म योगा तो टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं आए, योगा से टेंशन रिलीज करने के लिए आए, दैट इज व्हाई आई केम हियर, है ना। तो इतना कुछ टेंशन लेना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो पहले 2 पेपर क्लियर हो गए, एनी डाउट्स रिगार्डिंग फर्स्ट 2 पेपर 1? सॉरी सर, ऍक्च्युली मी जरा लेट झालं सर. सर ऍक्च्युली थोडं लेट जॉईन झाले, त्याच्यामुळे आम्ही परत रिवाइज सुरुवात. करू, डोंट वरी मैं हो, रिवाइज थँक्यू कर सर. दूंगा। तो पेपर 1-2 में तो कोई नहीं है ना? सर पेपर 1-2 में ना योगिक एस्पेक्ट्स में जो पंचकोश का आएगा हमारे को, वो पंचकोश सिर्फ अपने सिस्टम्स रिलेटेड जो 2 पेजेस हैं उतना ही होगा ना, पंचकोश डिटेल में तो नहीं होगा ना पेपर 1 में? पंचकोश में है क्या? पंचकोश में नहीं सर, सिंपलेस्ट वो है पंचकोश कंसेप्ट कि देयर आर 5 एब्स्ट्रैक्ट शीट्स, जो हमको पता है कि 5 एब्स्ट्रैक्ट शीट्स आर देयर एंड वी हैव टू डील विद दैट, उसमें से। और योगिक एस्पेक्ट में पंचकोश में क्या है देखो, अन्नमय कोश इज योर फिजिकल बॉडी, यस सर, प्राणमय कोश इज रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग एंड ऑल, मनोमय कोश इज रिलेटेड टू मेंटल बॉडी, दैट इज योर माइंड, विज्ञानमय कोश इज योर बुद्धि, आनंदमय कोश तो हमारे लिए बहुत दूर है, तो अभी कुछ करना नहीं है, ये परीक्षा होने के बाद तुमको मोक्ष मिलाएंगे तभी आनंदमय कोश का सोचेंगे, है ना। तो अभी आनंदमय कोश ओके, फॉर दैट मैटर इट इज ओके। सो व्हाट वी हैव लर्न कि ऑल डिसीजेस आर इमेनेटिंग फ्रॉम द मनोमय कोश, मन में जो होता है वही रिफ्लेक्ट होता है प्राण में, प्राण में रिफ्लेक्ट होता है, देन देयर आर ब्लॉकेजेस इन योर प्राणिक सिस्टम, जो 72,000 नाड़ीज फ्री फ्लोइंग है, इसमें कहीं ब्लॉक हो गया तो कौन सा ऑर्गन को अटैक किया, कहाँ वो ब्लॉकेज हो गया, तो दैट ऑर्गन इज गेटिंग अफेक्टेड, इतना। एंड अल्टीमेटली वेयर इट इज शोइंग इन द फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी में आपको दिखता है, दैट इज द डिसीज। इतना, बस इतना भी नॉलेज आपको पंचकोश में है ना, तो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। तो और कुछ तो नहीं आएगा, चक्रा बिक्रा तो नहीं, चक्र वगैरह तो समझने के लिए है ना, और चक्कर मत लगाओ चक्रा सिस्टम के, ओके। वही तो सर मैं पूछ रही थी कि योगी के एस्पेक्ट्स में वो चक्र वक्र सब आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर 1 में कुछ सीखने के लिए है, डोंट वरी, है ना। सो इतना कुछ करके टेंशन नहीं लेना, है ना। सो डोंट टेक टू मच ऑफ टेंशन। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो ये ओके सर के बारे में हो गया। अभी 3rd पेपर में जाते हैं, NLNP पेपर 1, इसमें क्या दिया है, 5 तत्व है ना, इसमें 5 तत्व है, मतलब पंचमहाभूत 5 तत्व, बराबर। तो इसके ऊपर हमें स्टडी करना है। एक बुक है पंचमहाभूत का, इतना अच्छे से समझाया लेक्चर में, कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ, फ्रॉम वेयर दैट इज कमिंग, फ्रॉम सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य में तो हमको अभी आत्मा का लेक्चर होगा, ओके, नॉट दिस संडे, ये संडे में तो अपना ये है मीट है नेचुरोपैथी, नेक्स्ट संडे को आत्म तत्व का लेक्चर होगा, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन आत्म तत्व, ओके। तो आत्म तत्व का भी कुछ, तब तक एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के पहले कम से कम बुक में से कुछ भी पढ़ के आओ, बाकी का समझाना मेरा काम रहेगा, है ना। तो आत्म तत्व वो है व्हाई एंड हाउ एंड व्हाई आत्म तत्व, इतना हमको समझना है। तो ये 5 तत्वों का तो लेक्चर 5 ही हो गए अच्छे से, आपको पूरे मतलब यू कैन रिवाइज इट, दोज हु आर मतलब पढ़ो उसमें से। पीपीटीज तो मैंने डाल ही दिए कल, चलो ले लो सब पूरे पीपीटीज जो भी है, यू कैन गो थ्रू द पीपीटीज, वो देखो पढ़ो उसमें से करो, है ना। एंड पंचमहाभूता का तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो एकदम सिंपल है, ओके। तो ये आएगा पेपर 1 में। पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में, एक मिनट है, मैं आया, जस्ट अ मोमेंट।
किसी ने पहले के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं क्या? चक्र के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है? है ना? है ना? रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पेपर 2 में, मतलब यौगिक एस्पेक्ट्स में है कि वो अपने नेचुरोपैथी नेचुरल लिविंग में? मैं तो यौगिक एस्पेक्ट्स के बारे में पूछ रही थी ना सर से। तो उसमें है कि नहीं? पेपर मैंने 1 में पेपर्स है देखे हैं, किसमें जो भी होने दो, सारे सॉल्व किए हैं। नहीं किरण जी देखिए, अभी कैसे ना, मेरी पढ़ाई तो ऐसी खास जल्दी होती नहीं है, तो जो पंचकोश और ये सब है ना, वो 1 वीक अपन को जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, उसमें ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। तो वो पंचकोश अगर अपने पेपर 1 में आ गया तो अपन का डिफिकल्टी हो जाएगी ना चक्र पक्र। अरे वो देंगे ना, अभी कहा ना सर ने, सावंत सर देंगे पीडीएफ। बोलो। अभी सर ने बोला है वो चक्कर का चक्कर छोड़ दो, वो टेंशन मत लो, आगे का देखो। हाँ वही तो इसलिए तो बोल रही थी क्वेश्चन पेपर लेकिन देखे। उसका मतलब यू शुड नो व्हाट इट इज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें क्या है, सूर्य नमस्कार है ना। सूर्य नमस्कार इट्स वेरी सिंपल। सूर्य नमस्कार में तो कुछ है ही नहीं कि 10 पोस्चर्स एक याद करना है तुमको कि 10 के 10 पोस्चर्स के नाम एंड ऑर्डर, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो तुमको मालूम होना चाहिए। एंड नेम्स 10 के 10 कि जो हम उसे बोलते हैं, फर्स्ट मंत्रा लास्ट मंत्रा बस, एंड बीज मंत्रा वगैरह जो है, बिकॉज दैट कुड कम इन योर वाइवा। आई डोंट थिंक कि पेपर में कुछ पूछने का सवाल है, लेकिन क्योंकि सबको लिखने को नहीं होगा ना। अगर मंत्रा है वो लिखने को बोला तो इंग्लिश वाले को संस्कृत नहीं आएगा, संस्कृत वाले को इंग्लिश नहीं आएगा, तो लिखने का सवाल नहीं, बट वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है। तो एटलीस्ट दैट यू शुड नो कि कौन सा मंत्र है, क्या है। 10 पोस्चर्स के नाम तुमको चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे चलता है, क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग कहाँ करते हैं, तभी कैसे एक्सेल करते हैं, क्या है, वो सब दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। फिर इसके बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं, दैट यू शुड नो, है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड बेनिफिट्स सूर्य नमस्कार में, और क्या, सूर्य नमस्कार इज नथिंग। ओके, फिर क्या होगा आगे चल के, फास्टिंग का। कल इतना अच्छा लेक्चर हो गया फास्टिंग का, तो उसमें क्या है, फास्टिंग का चैप्टर से, एंड सर का इतना ब्यूटीफुल लेक्चर है कल जो हो गया, तो उसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। तो फास्टिंग में तो कुछ है ही नहीं, कल का लेक्चर ही इतना अच्छा था सर का, तो दैट इज वेरी इजी। तो ये तुमको करना है। बोलो। प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल डाएट मध्ये ओनली 4 चॅप्टर्स आले ना, निसर्गाहार डाइट आएगा ना उसमें, फर्स्ट 4 चैप्टर्स डाइट के फर्स्ट 4 चैप्टर्स पेपर 2 में आएंगे, फर्स्ट 4 चैप्टर्स। तो 4 चैप्टर्स में क्या है, मैं कल ऐसे भी जो मुझे फिजिकली मिले थे वाशी में स्टूडेंट्स, उनको भी मैं समझा रहा था कि फर्स्ट चैप्टर इज ए इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, उसमें तुमको क्या करना है। सेकंड चैप्टर जो है उसमें भी तुमको कौन सा उसमें ही सब मिनरल्स वगैरह जो बहुत सारे आते हैं वो नहीं है। तुमको क्या होना चाहिए कि फाइबर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है डाइट के, दैट यू शुड नो। देन थर्ड इसमें कि कौन सा डाइट, साइंस ऑफ डाइट क्या है, एंड फोर्थ इज व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, बस। और क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। तो डाइट हो गया, फास्टिंग हो गया, है ना। मसाज वगैरह तो हमको सेकंड टर्म में आएंगे, तो अभी तो उसका कोई सोचने का जरूरत नहीं है ना? तो और क्या चाहिए बोलो, तो ये 4 एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द मैनुअल ना, उसमें से ही आएगा। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वो 14-15 के पेपर भी डाले, माय गॉड मेरा तो सर चक्कर गया। तो 14-15 से कोर्स आज 22 में इतना चेंज हो गया हमारा कोर्स, लेट मी टेल यू। 14-15 के पेपर, क्वेश्चन पेपर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के पेपर जो सॉल्व करेंगे ना, दिमाग खराब करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, सीधा किसी ने प्रिंट आउट निकाला होगा तो चने वाले को दे दो, अगर है तो, सॉल्व करने से बचा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, उसमें कुछ नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है तो लास्ट ईयर के पेपर देखो, मैक्सिमम लास्ट टू लास्ट ईयर, अगर तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। बट दैट टू मेरा कहना है कि बुक से जाओ, उसमें भी लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर करेंगे तो पंचमहाभूता एंड तत्वा का कोई रेफरेंस पीछे के पेपर में नहीं देखो, बिकॉज दिस बुक हैज चेंज दिस ईयर, लेट मी टेल यू, इट हैज ड्रास्टिकली चेंज दिस ईयर। तो ये साल का बुक एंड लास्ट ईयर का बुक में बहुत फर्क है। मतलब तत्व उधर ही है, तत्व उधर ही रह गए, वायु तत्व ही था लास्ट ईयर, पृथ्वी तत्व तो 2014 से पृथ्वी तत्व ही है, बट उसको देखने का, समझने का, इन डेप्थ देखने का वो जो नजरिया है ना वो बदल गया। सो व्हाई रिफर, मतलब सॉइल तो वही रहेगी, आई एग्री सॉइल तो, लेकिन हमने जो सोचा है कि कैसे है कि स्किन के ऊपर कैसे इसका अफेक्ट होता है, कैसे होता है, हाउ दैट फ्रॉम थेरापेटिक व्यू दिस बुक्स एंड दिस स्टडी especially for Panchamabhuta and the Tattvas has been written and changed after a long, मतलब सावंत सर का बहुत ये था इंसिस्टेंस इसमें, तो कि ये थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करते गए हैं। सो लास्ट ईयर का कोई रिफर करने का जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर का डाइट का बुक तो लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया है, इसके पहले डाइट का बुक नहीं था, खाली चैप्टर्स में नोट्स पे ऊपर स्टडी होता था, तो इतना इन डेप्थ बुक नहीं था वहां पे। तो जो बुक हमने लास्ट ईयर से चालू किया तो 2014, 15, 17, 18 में से तुमको डाइट का क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो व्हाई ब्रेक योर हेड ऑन दैट, यही मेरा कहना था। तो तुम मैक्सिमम लास्ट ईयर का, उसमें भी पंचमहाभूता का साइड में डालो कंसेप्ट, आत्म तत्व पंचमहाभूत का थोड़ा आत्म तत्व का मिलेगा डेफिनेटली, तो बाकी का उसके पहले का मतलब 1 ईयर बैक 2020 to 23, 21, 2021 का पेपर में से तो देखो ही मत, ये कुछ पंचमहाभूत वगैरह ये सब कंसेप्ट है ना। सो डोंट ब्रेक योर हेड, इसलिए मैं बोला लास्ट मैक्सिमम 2 साल पहले के पेपर करो, उसके पहले के भूल जाओ। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उसमें से कुछ नहीं मतलब चेंज हुआ, बट बहुत सी चेंजेस हुए हैं, बिकॉज इट इज इम्प्रूव एवरी ईयर। हमें तो इस साल इम्प्रूव करना है ना, अगर इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होता है, बट थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हर टाइम होता है ना, वी हैव टू इम्प्रूव, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस, थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट एकदम सडनली नहीं होता है ना। मतलब जो डाइट है तो सडनली कोई बोलेगा नहीं कि ये लास्ट ईयर तक खाते थे आज बंद करो, या ये नहीं खाते थे ये चालू करो, ऐसे कुछ नहीं था। डाइट वगैरह भी सेम था, बट बुक फॉर्म में जो सर ने लिखा है ना वो कभी बुक फॉर्म में नहीं था जो अभी आया है। तो कैसे होता है ना कि जो स्कैटर्ड नोट्स थे वो कंसाइज हो गए, एक जगह में आ गए। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दोस ओल्ड पेपर्स यू कैन स्टडी बेटर थ्रू योर बुक्स, ये मेरा कहना है। इसके ऊपर भी अगर किसको डर लगता है तो करना है तो करने को मना नहीं है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। किसको अगर लगता है कि नहीं थोड़ा प्रैक्टिस करो करके बाद पीछे कर रहे हैं तो करने दो, ऐसे नहीं, बट दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट। अच्छा, दोज हु हैव जॉइंड लेट तो उनको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट 2 पेपर्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट 2 पेपर्स के बारे में ऐसे किया डिस्कस कि फर्स्ट पेपर जो है वो यौगिक एस्पेक्ट का है, तो किसी भी बुक में एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो 4 सिस्टम्स है ना, ये ओनली फॉर द मिड टर्म तक है। मिड टर्म के बाद में बाकी 4 सिस्टम्स मतलब नर्वस है, एंडोक्राइन है, तुम्हारे गायनेकोलॉजी है एंड जेरेंटोलॉजी, ये 4 सिस्टम आएंगे एंड मिड टर्म के 4 सिस्टम्स नहीं आएंगे। मिड टर्म के 4 सिस्टम्स है वो फाइनल में नहीं आएंगे, फाइनल में अलग आएंगे। बाकी पंचमहाभूता, नेचुरोपैथी ये सब रहेगा। ओके, दिस विल रिमेन बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ द कोर्स। सिस्टम में एकदम 8 सिस्टम पूरे के पूरे स्टार्टिंग में ही देने से कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ओनली 4 सिस्टम्स हमने डिवाइड करके दिए। ओके, तो 4 सिस्टम में पहला जो चैप्टर है किसी भी बुक में, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तो उसमें आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोइंग लिटिल डीप,
suppose if you are taking circulatory system, what it is related to? Heart. तो अंबेडकर सर का इतना अच्छा लेक्चर हुआ था. It is related to heart. So what it will ask कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट के क्या पार्ट्स है, हाउ दैट सर्कुलेशन हैपन्स, है ना, and what are the components, how that blood is brought and then blood is circulated, etc. That is circulatory system. If you go to next, digestive system, from mouth to anus, it is a continuous alimentary canal. इसमें क्या क्या है, how the digestion of different things taking place from mouth से लेके तुम्हारा stomach, फिर assimilation in the intestine and final absorption जो है बाकी बचा हुआ in the colon and then discharge the unwanted toxic matter, सब निकाल देना. That is all is your digestive system, है ना. फिर digestive system, respiratory system में it is related to lungs, then nose, तुम्हारा जो pharynx, larynx, bronchus and your lungs, that is respiratory system. And what ये musculoskeletal, ये तुम्हारा skeleton and the muscles attached to it. तो ये हो गए तुम्हारा मेडिकल सिस्टम चारों का, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी. फिर उसके जो डिसीजेस है रिलेटेड, तो रेस्पिरेटरी है तो तुम्हारा अस्थमा है, सीओपीडी है, तो ये डिसीज हमको मालूम होना चाहिए. हमको डिसीज ट्रीट मतलब करने, मतलब यू आर नॉट ट्रीटिंग द डिसीजेस बट यू आर गिविंग सम प्रिवेंटिव एंड रिहेबिलिटिव मेथड. डॉक्टर तो ट्रीट करते हैं बट ये मेथड देने के लिए यू शुड नो. तो कैसे होता है कि सपोज इफ अ पेशेंट कम्स, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो यू नो दैट अगर स्मोकर है तो उसको ब्रोंकाइटिस और ये डिसीजेस है, व्हाई इज सफरिंग, है ना. तो मतलब दैट यू शुड नो, इसलिए हो दिया है. तो डिसीजेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम. तो व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ दैट सिस्टम, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एंड व्हाट इज द डिसीजेस रिलेटेड टू दैट सिस्टम. ये हो गया पेपर 2. पेपर 1 में योगिक एस्पेक्ट, मतलब कैसे योगा इफेक्ट करता है डिफरेंट डिसीजेस के ऊपर. देन तुम्हारा वो थोड़ा सा पंचकोशा का कंसेप्ट है उसमें, हाउ दैट इज हैपनिंग, है ना. एंड देन जो आसन दिए, तो आसन में क्या है कि बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी आसन, कि कैसे होता है, एंड रिलेटेड टू दैट सिस्टम. बस और क्या चाहिए, इतना सिंपल है ना. तो वो एक करो. एंड रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए मैं बताता हूँ. प्रैक्टिकल में देर आर नंबर ऑफ आसन्स इन ईच सिस्टम. इसमें से हम लोग देंगे हर एक सिस्टम के 10 निकाल के देंगे. सो दिस विद इन 2-3 days विल डिक्लेयर दिस 40 आसन्स, 10 फ्रॉम ईच सिस्टम. 10-10 एक सिस्टम के करके 40, मतलब 10 रेस्पिरेटरी, 10 मस्कुलर, 10 डाइजेस्टिव, 10 सर्कुलेटरी, 40. इसमें से मिक्सचर आएगा, प्राणायाम भी होगा उसमें से, इसमें बंद मुद्रा भी होंगे, है ना, ये सब. तो 40, ये 40 के पूरे नाम याद रखना है, कैसे करते हैं वो याद रखना है. ये 40 आसन्स एंड प्रैक्टिसेस एग्जाम के पहले सैटरडे संडे को, दैट सेशंस यू डोंट मिस. जो नजदीक रहते हैं प्लीज कम टू योग भवन. तो वहां आके एक्चुअल प्रैक्टिस करो वहां पे, है ना. दोस 40 प्रैक्टिसेस विच आर अलॉटेड फॉर योर एग्जाम, जिनको पॉसिबल है. तो नहीं बोलता हूँ, तो लंबा रहते हैं तो उनको ऑनलाइन करना है, बट सेक्टर 6 में रह के ऑनलाइन मत करो, सेक्टर 10 में रह के ऑनलाइन मत करो. थोड़ा सा चल के YVN तक आ जाओ. डॉक्टर काले रहते इंदौर में, आई एम नॉट आस्किंग हिम टू कम. पूनम सर हमारा कितना भी लंबा है लेकिन मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा. तो ये लोगों को तो हम बिल्कुल इसमें तो दिखाई देंगे. बट आस्क ऑल योर डाउट्स ऑन दिस 2 dates, ऑन दोस 40 आसन्स, गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड. एंड ध्यान से देखो कि कैसे करते हैं आसन में, कैसे जाना है, कैसे आना है, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इट इज अफेक्टिंग, है ना. फिर इसमें से 40 तुमने पक्के कर दिए, या अभी से तुम देंगे ही, मतलब वो तो प्रैक्टिस करवा के लेंगे वो अलग है, बट अभी से 40 देंगे तो पता चलेगा कि कौन से 40 प्रैक्टिकल के लिए करना है.
एंड दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिकल ना, थ्योरी के लिए तो पूरे आसन है। तो ये 40 आसन में से जो करेंगे इसमें से 4 ही पूछेंगे, 10 में से खाली 4, एनी 4, तो कितने हो गए 16। तो आपको फाइनली कितने आसन प्रैक्टिकल में करना है 16 आसन, बस ओनली 16 आसन देंगे और 16 आसन में से करना है। तो है क्या डिफिकल्ट इसमें, है कि नहीं? सर ये 4 will be our choice of 4. हाँ, These 4 will be our choice of 4 ना? तुम्हारे चॉइस के देंगे ना, तो तुम आसन नहीं चूज करोगे, कुछ इतना आसान से कुछ करेंगे ना, तो चॉइस हमारा कुछ तो रहने दो ना एग्जामिनर का। ओके सर। हाँ सर, हेलो सर। अरे सभी इजी है, इसमें कुछ नहीं, कुछ भी देंगे तो 10 में से क्या like sir there are something which body limitations होते हैं, like Garudasan I cannot do दैट इज that. अंडरस्टूड। हाँ एक्चुअली जी हमको पता है yes sir. कि इनके बॉडी के लिमिटेशंस है, तो अगर वो नहीं कर सकते तो कैसे करना है, मतलब दैट वी अंडरस्टैंड। एंड लिसन, ऑल दीज आसन्स आर मेड फॉर थेरेपिस्ट, आसन है ना वो पेशेंट्स के लिए, इसलिए वी आर नॉट सेइंग कि तुम जैसे टीटीसी में आसन, मतलब कोई भी टीटीसी हो, मतलब घंटाली की हो या योगा इंस्टीट्यूट की हो या कहीं की भी हो, है ना, तो वहां देयर यू आर डूइंग द ट्रेडिशनल आसन इन अ परफेक्शन। यहाँ पे क्या है, यू हैव टू शो इट टू द पेशेंट, इसलिए वो तो पहले ही से ही सिंप्लीफाइड है, बट थेरेपिस्ट को थोड़ा मालूम होना चाहिए। बट ऐसे भी नहीं है कि थेरेपिस्ट, कभी कभी कहते हैं इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि थेरेपिस्ट भी एकदम परफेक्ट ही रहेगा, है ना, तो ऐसे भी नहीं है। तो थेरेपिस्ट को एटलीस्ट ही शुड नो कि ये आसन ऐसे किया जाता है। सो इफ यू आर फॉलोइंग द परफेक्ट स्टेप्स देन ऑल्सो यू आर गेटिंग मार्क्स। और इधर कोई काटने के लिए बैठे नहीं है योग में, है ना, ऐसे नहीं है। वी वांट टू मेक यू एजुकेटेड। ऐसे कोई इधर कुछ दुश्मनी पुरानी लेके नहीं बैठे है कि कैसे नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे। डोंट टेक टेंशन। आपको सिस्टम अगर बोलेंगे आपको कि द्रोणासन करो और किसी ने द्रोणासन के बदले भुजंगासन किया तो सॉरी, यू आर लूजिंग मार्क्स। समझ में आया ना, मतलब ही कुछ आसन किया कि नाम ही नहीं मालूम और क्या, तो तुम पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे, तो दैट टाइम यू आर गेटिंग 0 मार्क्स। ये तो क्लियर है। यस यस। अपने मर्जी से कुछ भी, मतलब बोलो राशि। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल चक्रासन हुआ, हमारे पास तो कोई लीडिंग प्रैक्टिसेस नहीं है। अभी एग्जाम में अगर हमको प्रैक्टिकल में चक्रासन आया, लीडिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है तो लीडिंग प्रैक्टिस करो वगैरह, वैसे नहीं है यहाँ पे, है ना। यू शुड नो द टेक्निक, दैट्स ऑल। अच्छा, आपको अगर टेक्निक परफेक्ट मालूम है ना, परिवर्तित चक्रासन या करना है तो ये तुमको टेक्निक अगर मालूम है, विशिष्ट उत्तान वक्रासन करना है, सो इट इज ऑल ऑब्वियसली। अगर एग्जामिनर देखेगा कि तुमने लेफ्ट का राइट लिया और दोनों साइड में डाला, क्या पहले ही लेग चेंज किया, क्या किया, समझ में आया ना, देन इफ यू आर कमिटिंग दैट काइंड ऑफ ब्लंडर then you are losing mark, otherwise you will not lose mark. अच्छा, that means sir हम लोगों को टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए, not necessary that we'll be able to attain the final position or final position. हाँ, सेल्डम, मतलब हार्डली 1% या 2%, 1% से भी ज्यादा नहीं, मतलब एकदम बाय चांस मगर कोई आया ऐसे ही उठ के कॉन्फिडेंस में और भलता ही कुछ किया तो ही फेल होता है, अदरवाइज कोई फेल नहीं, है ना। तो बिल्कुल ये मत लेना। तो प्रैक्टिकल का कोई टेंशन, हाँ वाइवा का सबसे ज्यादा टेंशन मैं मालूम ना, क्योंकि वाइवा में है ना तो पूरा सब्जेक्ट पूरा का पूरा, मतलब जितना भी पोर्शन है वो पूरा वाइवा में है। तो वाइवा में तो ऑब्वियसली दैट इज द ओनली टेस्ट वेयर वी नो व्हाट यू नो। सर ये प्रैक्टिकल में हमारा सूर्य नमस्कार और बाकी सारे सिस्टम के आसन वो सब इंक्लूडेड होगा ना। सूर्य नमस्कार तो एक ही सूर्य नमस्कार डालना होता है, दैट इज परफेक्ट। एक सूर्य नमस्कार 10 पोस्चर में करेक्ट करके दिखाना है, बस दैट्स ऑल। टू प्रैक्टिकल में नहीं है, ओके, वो भी प्रैक्टिकल में नहीं है, वो हम कभी पूछेंगे। अभी रिगार्डिंग वाइवा एग्जाम, वाइवा में तो पूरा पोर्शन है। वाइवा इज द ओनली थिंग व्हेन वी नो कि आपको क्या मालूम है ना। सर प्रैक्टिकल में सूर्य नमस्कार नहीं है, मतलब पोस्चर दिखाना या कुछ नहीं।
वो खाली वाइवा में आएगा। वाइवा में वाइवा में आपको पोस्चर्स दिखाने होंगे सर? वाइवा में क्रिया है, प्रैक्टिकल में क्रिया है, क्रिया करके दिखाना है, वो एक है, मैंडेटरी है क्रिया के मार्क्स। अगर मतलब वमनजम जो है, अगर किसी को कुछ मेडिकल है तो मत करो जबरदस्ती, है ना। यू आर बीइंग टेस्टेड फॉर 16 प्रैक्टिसेस, 10 ईच। अगर एक क्रिया नहीं किया तो यू आर गिविंग एग्जाम आउट ऑफ 150। 150 में से फेल होना बहुत मुश्किल है। तो अगर क्रिया का कुछ प्रॉब्लम है या क्रिया नहीं कर सकते, कोई वमन जैसी क्रिया है ना, तो कुछ है कि कोई इंडिकेशन है, तो 160 मार्क्स से 150 मार्क्स की एग्जाम दे दो। इसमें से कैसे फेल हो सकते हैं? कुछ नहीं है, बाकी का तो तुमको सब आता है। गॉट माई पॉइंट? यस सर, यस सर। इसका कोई टेंशन मत लेना। हाँ बोला मैडम, नीलिमा मैडम बोला, अनम्यूट करून बोला। नाही समजलं म्हणून मी अंगठा दाखवला सर। अच्छा समझना, थैंक यू। सर आसन तो आ जाते पर उसके नाम याद नहीं रहते। वो जरूरी है। बादाम है घर में, बादाम है सर, बहुत ट्राई किया है। रात को अभी भिगोना, एक ही सिस्टम के आसन के नाम थोड़े थोड़े याद चालू है। करो, 2-2 बादाम भिगो के रखो, काले जो मनु का आता है वो भिगो के रखो, और एग्जाम तक रोज सुबह खाओ, वो पानी भी पियो, मेमोरी अच्छी हो जाएगी। ओके सर ऑलरेडी खाने के बाद भी नहीं अच्छी हो रही है मेमोरी से, है ना। ये दिस इज नॉट एक्सक्यूज तस्लीम जी, नॉट, यू कैन आस्क एनी डाउट। मुझे सर, टायर्ड नहीं हो रहा है, दिस कैन नॉट बी। कटोरी भर के खा रहे हैं, 2 बादाम की बात कर रहे हो आप। खाओ। और सर वो सूर्य नमस्कार में बोलना है, टायर्ड नहीं हो रहा है, याद नहीं रहा है, ये दिस इज नॉट एक्सक्यूज। आई कैन टेक दिस। सर वो सूर्य नमस्कार में जो बीच बीच में जो बोलना है ना, वो कैसे याद करना है, वो मुझे नहीं आ रहा बोलने। क्या क्या सर वो बोल रही है सूर्य नमस्कार के जो बीज मंत्र हैं और वो सब जो बोलना है वो उनको याद नहीं हो रहा है। छोड़ो, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। इतना कोई डीप में जाता नहीं, और उससे एक आधिया बार आया नहीं एक आध मंत्र बोलने को, तो उससे कोई फेल नहीं होता है, समझे ना। आया बीज मंत्र वाइवा में आएगा क्या, टू से कि कैसे बोलना है या कौन से स्टेप पे कौन सा बोलना है? वो डिपेंड्स, तुम्हारा जो एग्जामिनर का माइंडसेट पे डिपेंड रहेगा, अगर वो पूछना चाहता है। बट वो क्या पूरी एक वाइवा थोड़ी बीज मंत्रा पे लेने वाला है, एक आध कुछ पूछेगा, उसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है ना। बाई चांस कोई पूछेगा, इसमें कौन सा है। तो वाइवा भी कितने हैं, वाइवा भी कितने हैं, 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन है ना। तो 6 ग्रुप वाले हैं, इसमें से 80 मार्क्स की वाइवा। 80 मार्क्स यानी कितने हो गए, 20 क्वेश्चंस हो गए, एम आई राइट? सॉरी 40 क्वेश्चंस हो गए। 40 क्वेश्चंस हो गए, 40 क्वेश्चंस हो गए ना, 2-2 मार्क के, तो 80 मार्क्स की वाइवा है 40। तो कितना चॉइस है तुमको आंसर करने के लिए, और 2-2 मार्क के तो क्वेश्चन है। इसमें भी समझो नहीं आया एक आधा क्वेश्चन, तो एग्जामिनर क्या करेगा, गिव यू अनदर ऑप्शन, 2 के बदले 1.5 मार्क देगा। वो भी नहीं आया तो 2 के बदले 1 मार्क देगा, बट ही विल गिव यू अ चांस कि ज्यादा। लेकिन अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, ऐसे मत करो उसको, है ना। कुछ तो करके आओ, और ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत कुछ डिफिकल्ट पूछना है या कुछ करना है। ओके सर, टेंशन नहीं लेना। और कुछ पूछना है ये ऋतु जी, ऋतु शैली? हाँ सर, जो नेचुरोपैथी और नेचुरल लिविंग के अपने 2 एग्जाम है, उन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या सर? 2 एग्जाम है ना? अब भी ज्वाइन किया? नहीं सर, ज्वाइन तो किया सर। मैं आपने जो नेचुरोपैथी और नेचुरल लिविंग का पेपर बताया है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब मेरे को वो समझा नहीं है। पेपर 1 जो है ना, वो पंचमहाभूत एंड 6 तत्व है ना, हाँ राइट सर, ऊपर है। एंड सेकंड है, एंड मेरे ख्याल से फास्टिंग है उसमें, फर्स्ट पेपर में। फास्टिंग एंड सूर्य नमस्कार, राइट सर। तुम्हारा पूरा डाइट
एक सेकंड ना। हाँ जी, डाइट है, डाइट के 4 चैप्टर है और ये है तुम्हारा क्या दिया है उसमें इम्पोर्टेंट नमस्कार। टॉपिक्स में से सॉरी वन थिंग है, सूर्य नमस्कार दिया है। राइट सर, राइट सर। तो सर एक पेपर पूरा अपना पंचकोशा पे और महाभूत और तत्वास पे ही है, मतलब वन पेपर। ओके, एक बुक राइट पे राइट ये राइट सर। वंदना जी, वंदना जी कहाँ गई? कुछ हाँ सर। सर एक डाउट था कि आपने बोला ना कि वाइवा 80 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें 2 मार्क्स है। तो आपने ये भी बोला सर कि जैसे सूर्य नमस्कार करने को बोला है उसमें, तो पूरा जो सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसके भी 2 मार्क्स ही रहेंगे और क्रिया भी जो उसी में रहेगी तो उसका भी 2 मार्क्स रहेगा। क्रिया वाइवा में नहीं होती है। अच्छा सर, तो ओके। वो सूर्य नमस्कार करेंगे तो कुछ अलग से मार्क हो, कुछ होगा डिवीजन। अभी इतना भी मेरे से मत पूछो ये सब बताओ, ये मत बताओ, थोड़ा तो एग्जाम आप भी दे दो ना। नहीं वो दे देंगे सर, बट सिर्फ ऐसे ही मुझे लगा अभी क्रिया का भी, मुझे ऐसा लगा कि क्रिया भी उसमें है करके, इसलिए पूछा सर। क्रिया तो तुम्हारा प्रैक्टिकल का पार्ट है ना, क्रिया इस प्रैक्टिकल का पार्ट है। अभी डालते हैं, आज मिला चांस तो आज, नहीं तो कल डाल देंगे। ठीक है सर। 40 आसन कौन से है वो डाल देंगे। ओके, तो उसके ऊपर ध्यान दे दो तो कुछ नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ है ही नहीं इसमें, एग्जाम का मैं देखा रहा था, बट जो मैंने बोला हो बुक के बाहर कुछ में ज्यादा मत जाओ, बुक में से जो है वही आएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो पेपर सामने आएगा तो ध्यान से पढ़ो, है ना, बिकॉज एज अ योगा स्टूडेंट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू शुड बी अटेंटिव, है ना, यू शुड बी अटेंटिव। यही तुम्हारी एक ये है कि तुम कितना अटेंशन से देखते हो, ध्यान से देखते हो, एंड हाउ मच यू आर कॉन्सेंट्रेट। बाकी कुछ नहीं समझेगा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा पेपर में, बट यू हैव टू बी अटेंटिव प्रॉपरली। ये क्यों पूछा गया है, इसका क्या मतलब है, एंड काफी टाइम है, 40 मार्क के लिए तुमको 1 घंटा है। इसमें से जो शॉर्ट नोट्स का है उसमें भी कुछ नहीं है। शॉर्ट नोट्स में यू हैव टू राइट, मतलब इसमें जो शॉर्ट नोट में भी वो पूछा गया है, इसमें से तुमको जो इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए। डोंट गो ऑन राइटिंग पेपर्स एंड नोट्स एंड सप्लीमेंट। बोर मत करो हमको, है ना। पूरा कुछ पिक्चर की स्टोरी जैसे लिखते हैं वैसे कुछ भी मत लिखो, जो पूछा है उसमें से लिखो बस। इमीडिएटली वी कम टू नो कि अरे इसको समझ गया, पॉइंट्स उसको मालूम है, तो वी कम टू नो दैट द पर्सन नोज द पॉइंट। टू द पॉइंट आंसर करेंगे ना बस। एंड देयर आल्सो स्पेलिंग मिस्टेक का कोई मायने नहीं रहता, है ना। स्पॉन्डिलोसिस है कि स्पॉन्डिलाइटिस या न्यूमोनिया के स्पेलिंग के ऊपर तुम्हारे मार्क्स नहीं है, समझे ना। समझो उसमें से भी एक आध शब्द नहीं समझा और हिंदी में या मराठी में इंग्लिश में लिखते लिखते बीच में डाल दिया, तुमको अगर नहीं आता है तो एक वर्ड बीच में से डाल दिया तो भी चलेगा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो, व्हाट यू नो इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस, समझे। तो वो भी बीच में से थोड़ा लिखा तो भी चलेगा। इफ यू वांट टू गिव द कंप्लीट पेपर इन हिंदी, यू कैन गिव द कंप्लीट पेपर इन हिंदी। इफ यू वांट टू गिव पेपर इन मराठी, गिव इन मराठी। गुजराती हमको नहीं, तस्नीम पूछ रही थी लेकिन मुझे गुजराती नहीं आता हमें, हिंदी में तो समझ जाएंगे। Sir, this Viva will be summation of all the 3 papers and whatever we have learned till date. हाँ, ये मिड टर्म तक जो सीखा उसका वाइवा मतलब पूरा आएगा, बाकी सब पेपर्स में तो ये बस वाइवा के सब्जेक्ट भी दे देंगे, वाइवा के सब्जेक्ट दे देंगे। वाइवा पे सब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट, क्या क्या ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल समझो कोई टीचर तुम्हारी वाइवा ले रहा है, मतलब अभी तो जो यहाँ पे आएंगे तो सवाल ही नहीं, मतलब if you are going to some teacher, that teacher will ask you only the questions about regarding, समझो 2 तत्व के, that teacher will ask you the questions about the पृथ्वी तत्व and जल तत्व, 5 questions on that. So 10 marks की वाइवा
उसके पास 20 मार्क्स की वाइवा उसके पास होगी, फिर दूसरे के पास, मतलब ऐसे। हाँ ये नम्रता नहीं समझ में आया सर। देखो वाइवा है ना, अगर आप मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि नजदीक रहते हैं तो वहां पे वाइवा दे दो आके योग भवन में, तो वहां पे ऐसे 5-6 टेबल रहेंगे, ओके 5 to 6 टेबल्स। इस टेबल देयर विल बी 1 टीचर सिटिंग, यू हैव टू गो 1 by 1 by 1 by 1, ओके 6 ग्रुप में है तो दो ऐसे रहेंगे समझो उसके पास जो क्वेश्चंस, तो ही विल आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे तो 10 मार्क्स उसमें हो गए, 10-10 20 हो गए, तो 4 टेबल पे जाएंगे तो 80 मार्क्स की वाइवा खत्म। यहाँ से वाइवा देते देते गेट तक जाने का, घर निकल जाने का। ओके ओके ओके, मतलब ईच टीचर विल बी आस्किंग डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे क्वेश्चंस। एक ही टीचर नहीं इतना पूछेगा, डिफरेंट टीचर्स विल आस्क डिफरेंट टॉपिक्स, उनके पास जो रहेंगे टॉपिक्स वो टॉपिक्स के पूछेंगे, उनको आंसर दे दो, टेंशन बट द कंटेंट्स विल बी कमिंग फ्रॉम द एंटायर पोर्शन दैट वी हैव स्टडीड। डिवाइड करके देंगे ना कि क्या क्या है उसमें, कौन से टॉपिक्स पे कैसे कैसे आएगा वो बता देंगे। अच्छा, वो आप लोग हमको पहले ही बता देंगे? हाँ, ग्रुप डिक्लेयर करेंगे ना कि ये ग्रुप में से क्वेश्चंस आएंगे, ये ग्रुप में से क्वेश्चंस आएंगे। और वो सर कब डिक्लेयर करेंगे? हाँ वो कब डिक्लेयर करते हैं? करेंगे, थोड़ा टाइम दे दो ना, 2-3 दिन में करेंगे। अच्छा, मतलब मच अहेड ऑफ एग्जाम्स। सडनली कल है तो आज नहीं है, ऐसे नहीं। हाँ हाँ वही दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे। ओके सर, ओके थैंक यू सर। येस नीलिमा मॅडम बोला ना। थँक्यू सर, तुम्ही खूप छान सांगता, दरवेळेला खूप म्हणजे दरवेळेला बोलणं नाही होत, पण थँक्यू, म्हणजे फारच केअरिंग आणि खूप चांगलं सांगता, गायडन्स पण मिळतो। मला आता अजून असं विचारायचं होतं की ग्लोबलच्या स्टुडंट्सना ऑनलाईन एक्झाम द्यायची की द्यायचं की तिकडे यावं लागणार? कसं आहे ना, ग्लोबल मध्ये काही लोक आता जसे काळे सर आहेत, इंदोरला राहतात, पूनम राहते बेंगलोरला राहते, कोणी खूप लांब राहतात, त्यांना काय आम्ही एक्सपेक्ट नाही करत की तिकडून लांबून इकडे या, त्यांनी ऑनलाईन द्यायची। जर ज्यांना जवळ आहे, नम्रता आहे, नम्रता राहते इथे नेरुळला राहते, तर नम्रता कॅन कम, म्हणजे वी आर एक्सपेक्टिंग की शी शुड कम अँड गिव्ह एक्झाम जे आहे। ठाणा पण तुम्हाला जर आहे तर ठाण्याहून या तुम्ही आणि द्या, इकडे येऊन जी परीक्षा देण्यामध्ये जी मजा आहे ना ती वेगळी आहे। आणि कसं असतं सिंपल, एक इसमें कभी कभी क्या होते ना, समजा तुमचं नेट गेलं, आम्ही काय करणार, कोण तुम्ही काय करणार नाही, आम्ही काय करणार। समजा काही असा प्रॉब्लेम झाला, कशाला पाहिजे रिस्क, जर शक्य असेल तर येऊन द्या ना, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। अगर जो लंबा है उनको हो गया प्रॉब्लम तो विल कंसिडर, बट जो सेक्टर 10 में पीछे रहते हैं और बोलेंगे कि मेरा नेट गया है, so it's very difficult ना, फिर उनको कंसिडर है। ग्लोबल है, आई एग्री, बट स्टिल ओके। आणि थिअरी पेपर 1-1 तासाचा असणार ना? हाँ, थिअरी पेपर 1-1 तासाचा असणार, 1 hour ईच? हाँ 1 ओके, थँक्यू सर। 1 तासाचे ते आपल्या एक सेकंड सैटरडे 6:30 to 8:30 आपला क्लास है, हमारा क्लास चलता है 6:30 to 8:30, 2 घंटे का क्लास है। एग्जाम के टाइम में हो 6 to 7, 7:15 to 8:15, खत्म। 15 मिनट का गैप, 6 से 7 चलेगा, 7:15 से 7:15 चलेगा, समझे ना। एग्जाम विल बी इन इवनिंग। यस सरिता, तो एग्जाम इवनिंग में रहेगा? हाँ शाम में? नहीं, मैं सुनाई नहीं दे रहा। एग्जाम है जो शाम को रहेगा एग्जाम? हाँ, टाइम टेबल कब का दिया हुआ है, लॉन्ग बैक टाइम टेबल में क्लियरली लिखा है एग्जाम सैटरडे। हाँ नहीं, सैटरडे संडे पर तो सब टाइमिंग का थोड़ा नहीं मुझे पता था। संडे को नहीं, सैटरडे को ही है ना, संडे को प्रैक्टिकल्स है, नेक्स्ट संडे को तो वाइवा है, एंड दोनों सैटरडे को ये है थियरी है। सर वो पूछ रही है एग्जाम का टाइम पूछ रही है सर। हाँ, एग्जाम का टाइम पूछ रही है। टाइम है ना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना, 6 बजे का करेंगे या तो 5:45 को करेंगे, टाइम मिलना चाहिए, तो थोड़ा टाइम जल्दी करेंगे और खत्म करेंगे। 1 घंटे के बाद 10 मिनट का या 15 मिनट का रिसेस है ना, वो भी किस लिए कि ऑनलाइन लोगों को PDF करके भेजने को थोड़ा टाइम चाहिए ना,
इसलिए तर मराठी मीडियम वाल्यांना थोडं टाइम द्या ना जास्त. मराठी मीडियम वाल्यांना ते इंग्लिश वाचायलाच 1 तास निघून जाईल सर. मराठी मीडियम मनीषा वाल्यांना तर मनीषा तुम कुछ भी मत बोलो, आई नो. हाँ तुम ये मत बोलो, डोंट टेल मी. ओके सर तो हमारा सैटरडे को तो इवनिंग होगा एंड संडे मॉर्निंग होगा ना, जैसे हमारे क्लास रहता है वैसे सेम क्लास. और जनरली पेपर का पैटर्न ऐसे होता है ना कि इफ यू आर स्टडीड, जो पहला पेपर लिख के तुम बोर हो जाओगे क्योंकि आधा घंटे में पेपर खत्म होगा, फिर क्या करना है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए जैसे मनीषा बोल रहे हैं कि मुझे रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको रुकना पड़ेगा. बट जनरली द पेपर इज गेटिंग ओवर इन हाफ एन आवर, कोई भी पेपर, इतना पक्का. सर ऑनलाइन में प्रैक्टिकल, सर पूनम सर ऑनलाइन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे सर? ऑनलाइन अभी कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वैसे ही 1-to-1 जूम मीटिंग होगा ना, सिंपल. ओके फॉर ऑल द टॉपिक्स लाइक जितने भी सिस्टम्स दे रखे हैं वो एंड नेचुरोपैथी अपना योगिक Last थेरेपी. 2 years we are conducting, don't worry. वो तो डायरेक्ट 1-to-1 टीचर एंड यू, दैट्स ऑल. 2 टीचर्स एंड यू, ऐसे होता है, 2 टीचर और तुम. और एनी डाउट्स? ठीक है, ऑल द बेस्ट. One doubt, sir. हाँ शिवांगी. Yes, sir. Good evening. सर ये 3rd को प्रैक्टिकल्स है शाम को सैटरडे को सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. 4th को हाँ कभी 3rd दिसंबर को प्रैक्टिकल सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. 4th को practice session, I think. Not practicals. Okay. So this is the practice of those systems. अच्छा. So paper only 11th को. ये एग्जाम प्रैक्टिस है शिवांगी, जो तो एक हफ्ता पहले देंगे हमें, वो भी 1 हफ्ता है ना. 1 हफ्ता पहले हो गया तो 1 हफ्ता तुमको करने का है ना. हाँ समझ गया. मुझे लगा वो 3rd और 4th का एग्जाम्स है वो भी. सॉरी. चलो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. लगेगा तो हम मिलेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. if any doubt, if any paper you want to get, मतलब कोई एक आधा टॉपिक अगर आपको समझना है तो मुझे बोलो ये बीच में, for exam will come. Okay. And one thing I would like to add here, for non-YTTC students, teachers are very, very, very helpful. आप जब ऑनलाइन भी एग्जाम्स लेंगे सो दे आर देयर फॉर यू. आपको पूरी तरह से वो काम, क्वाइट, कूल, रिलैक्स करने के बाद ही एग्जाम लेंगे. प्रेशर बिल्कुल बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा प्रेशर कम करेंगे और फिर लेंगे. ये हमारा एक्सपीरियंस YTTC में ऑनलाइन देते हुए भी बहुत आराम से हो जाता है. 2 टीचर्स हेल्प यू एडजस्ट द कैमरा, एवरीथिंग. जस्ट बी ऑन टाइम, लेट मत हो जाए, बस ये बात ध्यान रखना. बाकी सब आराम से हो जाता है. ऑनलाइन की कोई टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन तो उल्टा और. टोटली एग्रीड. ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच. ऑल क्लियर. चलो थैंक यू वेरी मच. अभी करो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. समझना है तो लेट मी नो. ऐसे ही 8:30 तुम्हारा कोई क्लास में बैठ के. एंड मनीषा कतुरे का तो पूरा पोर्शन रिवीजन होके रेडी है. आंसर तो उसका पूरा हेल्प. उसको कुछ भी पूछा तो सब कुछ आता है. कल मैं देखा, एवरीथिंग शी नोज, खाली बहाना बनाती है. चलो सर मस्कुलस्केलेटन समझाने वाले थे, आप बोले थे एक मस्कुलस्केलेटन. 2-3 दिन में कभी मिलेंगे. ओके, थैंक यू. कर देंगे. ठीक है. गुड नाइट सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय. बाय.